हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग। बेटा, इन माय लास्ट वीडियो आई हैव जस्ट डिस्कस अबाउट द एडवर्टाइजमेंट, द टू टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, दैट इज क्लासिफाइड एज वेल एज display, or you can say commercial advertisement. And then in classified advertisement I have just taught you about different captions, you can say, and in that initially I have started with situation vacant. Today I am going to start with situation wanted. Beta, in situation vacant, I have already discussed that situation vacant is a condition when firm or company invites the application, where they just invites the application for a vacant post, यानी कि किसी कंपनी के द्वारा कैंडिडेट को इनवाइट किया जाता है इसके लिए, वैकेंट पोस्ट के लिए. बट इन सिचुएशन वांटेड द कंडीशन इज क्वाइट डिफरेंट. इन सिचुएशन वांटेड व्हाट हैपेंस हियर, इट इज एन इंडिविजुअल हु सीक्स अ जॉब. एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि जॉब ढूंढ रहा है, ही इज जस्ट ऑफरिंग हिज सर्विसेज. वो क्या कर रहा है इस कंडीशन में, सिचुएशन वांटेड में, वो अपनी सर्विसेज को ऑफर करता है. समझ में आ रहा है. Here an individual is offering his services. So when we are going to write an advertisement under this caption and for the column of situation wanted, what points to be remembered, and you can say we should include these essential points. What are these points? First of all, we are going to begin it with the word available. जैसे सिचुएशन वैकेंट में मैंने बताया था that we used to start it with wanted or required. Here we will start with the word available, and then we will give the qualification as well as experience, age and sex. We will mention nature of the job sought. It means you are desired for which type of job, यानी कि आप किस तरह की जॉब ढूंढ रहे हैं, आप वो मेंशन करेंगे. Your minimum salary acceptable, it means how much salary you want for your that service or for your job, as well as your contact number as well as your address must be included. समझ में आ रहा है कि आपको क्या क्या रेलिवेंट चीज़ें इंक्लूड करनी है. These are the following things which you are going to include in your advertisement, which you are going to write for the column of situation wanted. So let's see how we are going to write it. Here I have just given one question, that you are Anil Verma of 257 Nehru Nagar, New Delhi. You have just passed BE Electrical in first division from a prestigious engineering college, and you are in need of a job in or around Delhi. Write an advertisement for the situation wanted column of Times of India. So how you are going to begin it with the word, or you can say you are going to first of all mention the caption, that is situation wanted. What you are going to write? Situation wanted. One more thing, you are going to write it into a box. आप किसमें लिखेंगे बेटा? इसे एक बॉक्स में लिखेंगे. सिचुएशन वांटेड आपने हेडिंग डाली. इसके बाद हम क्या करेंगे? आफ्टर दैट वी विल जस्ट स्टार्ट विद द वर्ड अवेलेबल, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. किस वर्ड से शुरू करेंगे? अवेलेबल. अवेलेबल. नाउ बिकॉज द इन क्वेश्चन ऑलरेडी इट इज मेंशन दैट अ BE electrical who has just passed, okay, BE electrical and in need of job. Okay, so here if it is mentioned like he is a fresher, then you are supposed to just show it as a fresher, and if you are already experienced, then you will mention, because in this question there is nothing mentioned like this that you are a fresher. It has just showed that you have just passed. Maybe you are for 3 months, 4 months you have already worked, so you can just mention accordingly. समझ में आ रहा है बेटा? So available of first class BE electrical from IIT Delhi, seeks a job in or around Delhi, at present working with a private firm in Pune.
अभी यहाँ पे अगर आप उन्हें नहीं लिखना चाहें, like you don't want to show who has, then we can mention who has just passed his engineering in good percentage. आप percentage भी disclose कर सकते हो, and you can just show that you have just passed from a reputed college in good with good percentage. समझ में आ रहा है? Then you will mention what? Your age. I am not mentioned here, okay, but you will, because space problem is there, but you can mention here age and sex. समझ में आ रहा है बेटा? What you are going to write here, like I'm just pointing it through the arrow. You will mention here age, and then age may be 30 years. Okay, age यहाँ पर हम assume कर लेते हैं कि 30 years है, and sex if you want to write it is you can, otherwise it is optional. There is no it is not mandatory that you are going to write it. Then you will mention here age, then salary expected, it means whatever salary is being expected by you, 20,000, 40,000, whatever salary you are expecting. Then you will mention simply please contact. If name is already mentioned here in the question, then you will write accordingly, otherwise you can just write from your side XYZ or anything, any name you can write, and then mention here a formal address along with the contact number. Here beta you can write email address also. समझ में आ रहा है? यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं. तो इसका मतलब आपका जो ये फॉलोइंग स्टेप्स था, इसको फॉलो करते हुए आपने सिचुएशन वांटेड को पूरी तरह से लिख लिया, और ये आपका टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो गया. ये आपका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया. और अगर आप इन स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करके बहुत नीटली अच्छी तरीके से लिखते हैं बेटा, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर 4 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन. समझ में आ रहा है? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट कैप्शन, दैट इज सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल्स एंड हाउस होल्ड गुड्स. यानी कि बेटा जब हमें कोई सामान बेचना या खरीदना होता है, आपने कई बार न्यूज़पेपर में ये ऐड भी देखा होगा दैट वांट्स टू परचेज और वांट्स टू सेल, इट मीन्स फॉर सेल और फॉर परचेज. ये इस तरह का ऐड देखा हुआ है ना, कि जब हमारे पास सपोज मेरे पास एक गाड़ी है और मैं उसे सेल करना चाह रही हूँ, तो मैं एक ऐड दे सकती हूँ दैट अ कार फॉर सेल, ठीक. और मेरे को अगर कोई सेकेंड हैंड एक गाड़ी खरीदनी है तो मैं उसके लिए भी दे सकती हूँ, ठीक है ना, फॉर परचेज, कि मतलब मुझे खरीदना है. समझ में आया? इसी तरह से आप कोई प्रॉपर्टी अपनी बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, या कोई हाउस होल्ड गुड्स आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, कोई फर्नीचर है, इस तरह की कोई भी चीज़. कुछ लोग कंप्यूटर बेचते हैं, लैपटॉप बेचते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपने देखा होगा जो कि सेल और परचेज कॉलम में आ सकती हैं. आपको सामान बेचना है या आपको सामान खरीदना है. तो जब भी हम इस तरह का एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, या आप कह सकते हैं दैट व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स विच वी आर गोइंग टू इंक्लूड इन दैट एडवर्टाइजमेंट. सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to start with the word sale, purchase or available or wanted. अभी आप यहाँ देखेंगे बेटा, I have written here available, यानी कि जब आपको कोई चीज़ सेल करनी है तो आप क्या देंगे? फॉर सेल के लिए ये क्या आ जाएगा? इन सेल टर्म अवेलेबल वर्ड विल कम, कि आपके पास अवेलेबल है ये चीज़ और आप उसे बेचना चाह रहे हैं, ठीक है ना. थिंग इज अवेलेबल फॉर सेल. और अगर आप कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं, सपोज आप कोई सेकेंड हैंड लैपटॉप लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? वांटेड अ लैपटॉप, कि आपको एक लैपटॉप चाहिए.
ठीक है। तो वांटेड बाइक या कई लोग स्कूटी, कुछ लोग सेकेंड हैंड खरीदते हैं ना, कोई भी व्हीकल लेते हैं, तो इसमें आपको इस तरह से स्टार्ट करना है। तो सो व्हाट आई हैव डिड दैट स्टार्ट और बिगिन विद द वर्ड सेल, परचेज और अवेलेबल और वांटेड। ठीक है, वांटेड किस में आएगा आपका परचेज वाले कॉलम में। समझ में आ रहा है बेटा? अगर आपको कोई चीज़ परचेज करनी है तब आप लिखेंगे वांटेड, और अगर आपको सेल करनी है तो आप क्या लिखेंगे अवेलेबल। नाउ सेकंड पॉइंट इज मेंशन द टाइप ऑफ एकोमोडेशन, व्हीकल और हाउस होल्ड आइटम, यानी कि वो किस तरह की चीज़ है। सपोज आपका फ्लैट है, प्रॉपर्टी में आ गया, तो आप इसे लिख सकते हैं कि किस तरह का फ्लैट है। 2 रूम है, 3 रूम है, 2 BHK है, 3 BHK है, तो किस तरह का है। ठीक, फिर सेकेंड थिंग क्या है आपका सपोज व्हीकल है, तो अब व्हीकल में आप क्या देंगे, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, कौन सा ब्रांड है, हाउस होल्ड गुड्स है, तो क्या चीज़ है उसको मेंशन करेंगे। देन गिव अ ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन कि वो चीज़ बेसिकली किस तरह से है, लाइक उसका कलर क्या है, अगर आपका फ्लैट है तो वो कौन सी स्टोरी, कितनी स्टोरी का है, किस स्टोरी पे, किस फ्लोर पे है। आपने देखा होगा सपोज मुझे घर बेचना है, वो 3 स्टोरी बिल्डिंग है, 3 स्टोरी का हाउस है, तो मैं 3 स्टोरी मेंशन करूँगी। मुझे फ्लैट लेना है, सेकेंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, किस फ्लोर पे वो फ्लैट है वो मेंशन करूँगी मैं। ईस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, वो मेंशन करूँगी मैं। ठीक है ना, उसकी लोकेशन क्या है वो मेंशन करूँगी। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है थोड़ा सा उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन देना होगा। समझ में आ रहा है? उसका मॉडल कौन सा है, उसका ईयर कौन सा है, अगर वो हाउस होल्ड गुड्स है तो आप उसका ये दे सकते हैं कि उसका जो पर्टिकुलर मटेरियल क्या है, वुडन है, आयरन है, स्टील है, प्लास्टिक है। तो इस तरह से आप ये सारी डिटेल इसमें इंक्लूड करेंगे। देन यू विल एंड विद द कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। तो सपोज अगर किसी को वो सामान खरीदना है तो वो कॉन्टैक्ट कहाँ करेगा, तो आपको इसमें अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर भी डालना होगा। नेक्स्ट सी बेटा, इसी में आपके जो मैंने 3 टॉपिक्स आपको बताए, प्रॉपर्टी, व्हीकल एंड दिस इज हाउस होल्ड गुड्स। तो इसमें आप क्या क्या डिफरेंस रहेगा, आप किस तरह से डिस्टिंक्ट करेंगे इन 3 एड्स को, वो हम देखते हैं। कि सपोज आप प्रॉपर्टी के लिए लिख रहे हैं तो आप उसमें क्या करेंगे, स्पेसिफाई साइज, फ्लोर, नंबर ऑफ रूम्स एटसेट्रा। देन यू विल गिव द लोकेशन एंड सराउंडिंग कि लोकेशन कैसी है, हार्ट ऑफ द सिटी है, मेन मार्केट, नियर मेन मार्केट, नियर बस स्टॉप, नियर यू कैन से रेलवे स्टेशन or any near this mall, whatever location you want to give, like nearby a park, जो भी आपको लोकेशन लग रही है। ठीक, सुटेबल लोकेशन और सराउंडिंग में क्या है, इन सराउंडिंग पार्क इज देयर। मोर ओवर यू कैन राइट कि आपकी पार्किंग फैसिलिटी है या नहीं है, वो भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप इसमें मेंशन करेंगे। देन मेंशन पिक्चर्स एंड फिटिंग्स कि आप जो घर या कोई फ्लैट बेचने वाले हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आपने देखा होगा कि कबर्ड्स वगैरह लगी हुई होती है, पूरा वुडन वर्क हुआ है। ठीक, तो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी। प्रॉपर इटालियन किचन है, जिसे कह सकते हैं सारा किचन वेयर प्रॉपरली फिक्स है, तो ये सारे आपके फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स में ये इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस एक्सपेक्टेड और ऑफर। बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, मुझे सपोज़ कोई चीज़ खरीदनी है, तो मैं ये भी तो बताऊंगी कि भाई इस रेंज में होनी चाहिए। तो जब हम सेल में आएगा आपका एक्सपेक्टेड, आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो आपको उसकी कितनी एक्सपेक्टेड, और ऑफर आएगा आपका किसमें बेटा, परचेज। ये आप इतना प्राइस ऑफर कर रहे हैं कि इस रेंज तक में आपको चाहिए। मैं आपको यहाँ मेंशन कर देती हूँ। ऑफर्ड आएगा किसमें, परचेज में, और एक्सपेक्टेड किसमें आएगा, आप जब कोई सामान सेल कर रहे हैं।
जब आप सेल कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेड, और परचेज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ऑफर। ठीक है, देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट, दैट इज व्हीकल। यू विल जस्ट, अगर आप किसी व्हीकल के बारे में लिख रहे हैं, आप कार, बाइक लिख के बारे में लिख रहे हैं, आप कोई ट्रक बेच रहे हैं, कोई गाड़ी बेच रहे हैं, कोई कार बेच रहे हैं, कोई बाइक स्कूटी बेच रहे हैं, तो उसमें आप क्या देंगे, सबसे पहले बटरवेस किससे शुरू करेंगे, खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो आप फॉर सेल और फॉर परचेज डालेंगे और वांटेड और अवेलेबल डालेंगे। ठीक है, देन हम क्या चीज़ अवेलेबल है, जो भी कार का मॉडल है, मॉडल मेंशन करेंगे, उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर मेंशन करेंगे, फिर हम उसकी कंडीशन, इन गुड कंडीशन, इन रनिंग कंडीशन, स्पेसिफाई द कंडीशन एंड माइलेज डन, कि अब तक वो कितना माइलेज कवर, कितना चल चुकी है वो गाड़ी, लाइक 50,000, 4,000, जितना भी उसने अभी माइलेज कवर किया हुआ है। फिर आप उसका कलर देंगे, उसमें एसेसरीज क्या क्या है, सपोज कार है तो उसमें म्यूज़िक सिस्टम है, एलॉय व्हील्स हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी बेटा। और फिर अगेन सेम प्राइस एक्सपेक्टेड, यानी कि अगर आप जो है उसको सेल करना चाह रहे हैं तो मैं इतने में सेल करूँगा जब मुझे इतना प्राइस मिलेगा, तो आप क्या देंगे, एक्सपेक्टेड प्राइस एंड ऑफर्ड। व्हेन यू वांट टू परचेज देन यू विल गिव द ऑफर्ड प्राइस। नाउ कम टू द हाउस होल्ड आइटम्स। हाउस होल्ड आइटम्स में क्या आ जाएगा बेटा, आपको सबसे पहले ब्रांड, मॉडल ये मेंशन करेंगे, फिर स्पेसिफाई द मटेरियल, की वो चीज़ किस मटेरियल से बनी हुई है, वो चीज़ किस मटेरियल से बनी हुई है। फिर क्या देंगे, गिव द प्रेजेंट कंडीशन, कि एट प्रेजेंट उस किस कंडीशन में है। ठीक है, कि वो उसकी कंडीशन अच्छी है, नहीं है, हालांकि नहीं होगी तो हम उसे खरीदेंगे क्यों, किस तरह से चाहिए, इन गुड कंडीशन। और अगर हम सेल भी कर रहे हैं तो कोई भी ख़राब कंडीशन में क्यों लेगा, सो व्हाट वी विल मेंशन, इट्स कंडीशन। ठीक है ना, गिव द प्रेजेंट कंडीशन एज वेल एज वी विल कोट द प्राइस। सो व्हाइल राइटिंग द एडवर्टाइजमेंट ऑफ सेल एंड परचेज we will just mention the following points, and beta you all are supposed to make a proper note of this. Whatever notes I have just given regarding the advertisement, you will just make a note of this also in your fair notebook. Just take a screenshot. Then let's have one example. We will solve that example. So beta, now here are some examples of which advertisement, classified, sale and purchase advertisement, which you are supposed to understand, and then definitely it will help you to write, okay, the advertisement of related to the sale and purchase. So let's see, there is a first question. You want to sell your flat in Ashok Vihar. Write an advertisement giving necessary details in about 50 words. So if we want to write about the advertisement of sale, first of all in a box we will just give the heading what, for sale. क्या heading डालेंगे बेटा, सबसे पहले for sale, and then how we are going to write it, see, because we need a flat, हमें किसकी ज़रूरत है, एक कस्टमर की ज़रूरत है, and we are having a flat with us which we want to sell. हमारे पास क्या है बेटा, एक फ्लैट है जिसको हमें बेचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे इसका एड ड्राफ्ट करेंगे। हम सबसे पहले क्या, मैंने आपको बताया भी था कि इधर वी आर गोइंग टू राइट फॉर सेल और फॉर परचेज, और वी कैन राइट हियर वांटेड और अवेलेबल ऑल्सो। सो सी, फॉर सेल DDA flat is available. Okay, where location we will mention here, first floor. Then about the flat, ये 2 bedroom flat है, 3 bedroom flat है, so we have mentioned here 2 bedrooms. Then drawing dining with full interiors. मैंने आपको बताया था that you are going to mention about the fixtures and fittings also. So here I have already mentioned with full interior. कार पार्किंग अवेलेबल, इट मीन्स अगर हम कोई फ्लैट खरीदने वाले हैं देन डेफिनेटली वी विल जस्ट
रिक्वायर कार पार्किंग स्पेस ऑल्सो। जब हम फ्लैट खरीद रहे हैं तो ये ज़रूर देखेंगे कि जो हमारी कार है उसको हम पार्क कहाँ करेंगे। तो मैं आई हैव ऑलरेडी मेंशन हियर, क्योंकि ये जो है हमारे कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स कार पार्किंग फैसिलिटी इज अवेलेबल नॉर्थ और पार्क फेसिंग। आप लिख सकते हैं कि आपका जो फ्लैट है नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है। तो आपने वो मेंशन किया है। आपके फ्लैट के सामने आपके जिसे कह सकते हैं जो भी आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उस लैंड के सामने अगर कोई पार्क है तो हम उसे भी मेंशन करेंगे, दैट इज पार्क फेसिंग लोकेटेड नियर मेन मार्केट। अब ये क्या है, मेन मार्केट के पास है, रेलवे स्टेशन के पास है, किसी हॉस्पिटल के पास है, हाईवे। इट मीन्स वॉट एवर कोई पर्टिकुलर नियर हाईवे है तो हम वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमें इसमें मेंशन करना ज़रूरी है, उसकी लोकेशन। देन रीजनेबल प्राइस, यानी कि आपका जो अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस आप लिख सकते हैं, दैट दिस फ्लैट इज अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस। और यू कैन ऐड दिस, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन दिस ब्रैकेट आल्सो, लाइक एक्सपेक्टेड प्राइस 30 lakhs। यानी कि आप इसमें ये मेंशन कर सकते हैं कि क्या मेंशन कर सकते हैं, इधर यू कैन राइट इट एट रीजनेबल प्राइस और यू कैन राइट हियर व्हाट एक्सपेक्टेड प्राइस 30 lakhs। इंटरेस्टेड वन कैन कॉन्टेक्ट टू, आप यहाँ पे किसको कॉन्टेक्ट करना है, उसका नेम देंगे, एड्रेस देंगे एंड यहाँ पर फ़ोन नंबर देंगे। तो इस तरह से आपका जो फॉर सेल का एडवर्टाइजमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसमें जो जो रेलिवेंट थिंग्स, जो रेलिवेंट पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं, आपने देख लिया किस तरह से सिस्टमेटिक वे में हम उसको ऐड करेंगे। नाउ लेट्स सी द सेकेंड एडवर्टाइजमेंट, दैट इज़ फॉर परचेज। अभी ये मैंने किसका लिया है, प्रॉपर्टी का, दूसरा मैंने ले लिया है व्हीकल, ठीक है। वी वॉन्ट टू परचेज अ सेकेंड हैंड हीरो होंडा मोटर बाइक, ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स। यानी कि आपको एक मोटर बाइक खरीदनी है, सेकेंड हैंड मोटर बाइक खरीदनी है, तो आप उसके लिए एडवर्टाइजमेंट किस तरह से ड्राफ्ट करेंगे और किस तरह से उसको न्यूज़पेपर में देंगे। तो उसका लैंग्वेज कैसा होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको हेडिंग क्या डालना है, फॉर परचेज, फिर वांटेड, अवेलेबल, इस वर्ड से शुरू करेंगे, या फॉर सेल और फॉर परचेज। इन दोनों में से आप कोई सा भी एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेल वाले कॉलम के लिए लिखना चाह रहे हैं तो वहाँ हमें स्टार्ट किससे करना है, फॉर सेल या फॉर सेल या अवेलेबल। और अगर फॉर परचेज कॉलम के लिए लिखना है तो फॉर परचेज या वांट, ठीक है। नाउ वांटेड अ सेकेंड हैंड हीरो होंडा मोटरसाइकिल, ये मैंने यहाँ पे बेटा इसका लिखा है मॉडल 2016 और 2017 मॉडल, क्योंकि हमें जो है 2-4 साल पुरानी बाइक चाहिए, तो हमने सेकेंड हैंड ले रहे हैं तो हमने लिख दिया कि 2016-17 मॉडल भी चलेगा, यानी कि इससे नीचे नहीं, 12-13 वाला नहीं चलेगा। हमने यहाँ पे कंडीशंस दी हुई है कि अगर किसी के पास ये कंडीशन मैच हो रही है देन ही कैन कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 2016-2017 मॉडल इन एक्सीलेंट रनिंग कंडीशन, हमें क्या है, अच्छी रनिंग कंडीशन में वो बाइक चाहिए, एवरेज भी अच्छा देती हो, ऐसा नहीं कि बाइक का जो है वो एवरेज ही बिल्कुल बेकार है। क्योंकि आप कोई भी व्हीकल खरीदते हैं बेटा तो उसमें या तो सेल्फ ड्राइवन एक पॉइंट ये भी हम डालते हैं कि भाई खुद की चलाएंगी, दूसरा पॉइंट कि कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए। वी कैन मेंशन अ पर्टिकुलर कलर ऑल्सो कि भाई हम दिस कलर इज़ गोइंग टू बी प्रेफर्ड, कि अगर किसी की ये कलर है। उसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हम ये देखते हैं कि वो उसका जो है वो एवरेज कितना दे रही है, ठीक है। देन वी विल मेंशन दैट एंड देन आफ्टर दैट कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी हम व्हीकल ले रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। समझ में आया, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल परचेजिंग एनी व्हीकल टू चेक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, कि उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं। देन व्हाट विल प्राइस नॉट टू एक्सीड, हमने यहाँ पे एक लिमिटेशन दे दी कि भाई 30,000 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, बिलो 30,000 ही चाहिए। दूसरा हम इसको क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, ऑफर्ड, क्योंकि सेल में हम डालते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस और हेयर ऑफर्ड प्राइस 25 to 30,000।
यानी कि 25 से 30,000 के बीच में ही चाहिए, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइस नॉट टू एक्सीड ऑफ योर प्राइस लिमिट यू विल मेंशन हेयर. इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट, हेयर यू विल मेंशन द नेम एंड एड्रेस, सिटी नेम. मैंने यहाँ पे डायरेक्ट न्यू दिल्ली लिखा है, बट आप यहाँ पे फॉर्मल एड्रेस लिख सकते हैं. लाइक आप डाल सकते हैं 252 जवाहर क्वार्टर, न्यू दिल्ली, like this any address you can give, and then you will mention here phone number. तो my dear students, आपको इस तरह से सेल और परचेज का एडवर्टाइजमेंट लिखना है. तो अभी हमने कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट लिखने सीख लिए हैं? सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड एंड सेल एंड परचेज. मैं आपको इससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट दूंगी फॉर प्रैक्टिस, एंड यू आर सपोज टू राइट दोज एडवर्टाइजमेंट इन योर फेयर नोटबुक. इट मीन्स you will do the practice of writing these advertisements so that you will be able to write it with confidence in your exam also. Okay, so just keep on practicing of writing advertisements. Till then, okay, bye bye.